राकेश सिन्हा एक जाने माने राजनीतिज्ञ और लेखक हैं, जो देश और दुनिया की राजनीति की गहरी समझ रखते हैं। राकेश सिन्हा को तर्क शक्ति में माहिर माना जाता है और आपके दिए भाषण और उठाए गए सवालों से कई विषयों पर गहरी समझ परिलक्षित होती है। आप नियमित रूप से समाचार पत्रों में आलेख लिखते हैं। राकेश सिन्हा ने 15 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें डॉक्टर हेडगेवार की बायोग्राफी भी शामिल है, जिसे 10 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। इसके अलावा स्वराज इन आइडियाज, विचारों का स्वराज, संघ और राजनीति, राजनीतिज्ञ पत्रकारिता, सेक्युलर इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटिज्म, इज हिंदू अ डाइंग रेस खास हैं। राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होने के बाद आपने उत्तर पूर्व के 4 गांवों को गोद लिया और उनकी काया पलट में बड़ा योगदान भी दिया। राकेश सिन्हा ने अपनी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की है, जबकि पीएचडी कोटा यूनिवर्सिटी से। आपने राजनीति शास्त्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल किया है। राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कई संस्थानों में आपने अध्यापन किया है। आप टीवी चैनलों का भी एक चर्चित चेहरा हैं, जो अपने प्रभावशाली तर्क और तथ्यों को बखूबी रखने के लिए जाने जाते हैं। संसद टीवी की साहित्यिक संगोष्ठी में आपका स्वागत है। Sriram Balasubramanian is a well-known economist and best-selling author based at one of the leading international monetary institutions in the world. He has worked for several global organizations, including the International Monetary Fund in the past. His areas of expertise include global macroeconomics, socio-economic trends in emerging markets, and Indic dharmic culture in the context of economics. He has written for several international publications such as Bloomberg, Foreign Policy, The Wall Street Journal, and Vox EU, among others, as an independent columnist, and he's been an independent panelist on CNBC TV 18. Besides authoring the path-breaking Kautilyanomics for Modern Times, he's authored 2 other books, Jamba, The Joint Family, shortlisted for the 3rd annual IAAC Literary Festival organized by the Indo-American Arts Council, and The Wizards, which has been featured in varied publications including The Hindu. He's an alumnus of Columbia University, New York. Sujit Kumar is serving India as a former parliamentarian. He was a member of the Rajya Sabha. He was the chairman of the Committee on Petitions of Rajya Sabha. He earlier served as the advisor in the rank of Chief Secretary to the Special Development Council of the Government of Odisha and as the Special Secretary of Odisha State Planning Board, very senior policy planning positions with the Government of Odisha. An engineer turned lawyer, Sujit Kumar is currently practicing law at the Odisha High Court and the Supreme Court of India. Previously, he worked at the World Economic Forum in Geneva, Switzerland, and for the United Nations Development Programme. He was an Asia Pacific Leadership Fellow at the East-West Center in Hawaii in the year 2009. He studied for the Mid-Career Master in Public Administration at the prestigious Harvard Kennedy School, Harvard University. He also has an MBA degree from said Business School, University of Oxford, having the distinction of receiving the inaugural Skoll Scholarship for Social Entrepreneurship. He also holds Bachelor of Engineering and Bachelor of Law degrees. Dr. Vandana Kumar is a civil servant, currently serving as Additional Secretary Rajya Sabha, Parliament of India. Dr. Kumar is a graduate of Delhi University, a postgraduate of Carnegie Mellon University, and holds a PhD from Gujarat University. In a career spanning 32 years, she's worked in diverse areas of governance, including national defense, development and promotion of Indian industry, renewable energy, and complex defense programs. She's contributed to the formulation of India's national green hydrogen mission, Yasho Bhumi, programs and policy interventions for enhancing India's renewable energy. She's given thought leadership in several policy areas and has extensive experience in global engagement in investment and industry at multilateral and bilateral levels. She's written extensively and has authored a book, Scaling of Frugal Innovation: Insights from India.
It gives me immense pleasure to welcome you all to the Sunset TV Literary Conclave. हर दौर में हमने देखा है कि जो साहित्य में शक्ति छिपी है वो किसी तोप और तलवार में नहीं, ये हर बार साबित हुआ है। और आज इस बात को हम और जानेंगे, समझेंगे इस कॉन्क्लेव के ज़रिए, इन मेहमानों के ज़रिए भी। और इस सेशन का जो विषय है, जैसा हमने आपको बताया, सत्र का विषय है साहित्य से संवरता लोकतंत्र, यानी लिटरेचर एम्पावरिंग डेमोक्रेसी। तो अगले करीब 1 घंटे में हम जानेंगे और समझेंगे कि किसी भी देश की लोकतंत्र की मजबूती में साहित्य की क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है, किस तरह से उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और आज के दौर में साहित्य के सामने चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, और आगे की राह हमें क्या नज़र आ रही है। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रोफेसर सिन्हा आपके साथ। बहुत सी किताबें हैं जो आपने लिखी हैं। मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि सबसे पहले आप बताइए कि क्या खास है इन किताबों में और आपकी लेखनी का मकसद क्या रहा है। देखिए, पहले तो मैं संसद टीवी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रम के लिए। लिटरेचर की क्या भूमिका होती है उसका मैं एक पहले उदाहरण से शुरू करूंगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का आपने नाम सुना होगा। पुष्प की अभिलाषा उन्होंने एक कविता लिखी थी। ये कविता उन्होंने बिलासपुर सेंट्रल जेल में लिखी थी 1922 में, जिसमें फूल के ऊपर एक कविता लिखकर उन्होंने एक चेतना जागृत करने की कोशिश की थी। उसे साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं था, मानवीय चेतना को जागृत करना। रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे और मनोनीत होने के बाद उन्होंने एक रेशमी नगर नाम की कविता लिखी। वो दिल्ली को उन्होंने रेशमी नगर कहा, जिसमें 4 पंक्तियां थी। होश करो दिल्ली के देवों होश करो, सब दिन न ये मोहिनी चलने वाली है, होती जाती गर्म दिशाओं की श्वासें, मिट्टी फिर आग उगलने वाली है। तो जब लेखक लिखता है तो उसके मन में 2 बातें होती हैं। पहली बात तो एक लेखक लोअर सेल्फ का लेखक होता है जो किसी खास एजेंडे को लेकर लिखता है। वो उसका प्रभाव तात्कालिक होता है, क्षणिक होता है। लेकिन जब लेखक एक दूरगामी प्रभाव के साथ लिखता है जिसमें उसका उद्देश्य होता है कि उसके लेखन से मानवीय चेतना बढ़े। जो आपने कहा लोकतंत्र और साहित्य, लोकतंत्र का साधारण अर्थ हम चुनाव समझते हैं। चुनाव एक छोटा सा बिंब है। लोकतंत्र का मूल अर्थ होता है कि व्यक्ति का सशक्तिकरण करना, मानवीय चेतना का सशक्तिकरण करना। जब मानव की चेतना जग जाती है तो वह संकीर्णताओं से ऊपर उठता है, और जितनी मानवीय चेतना ऊपर उठेगी उसी का प्रतिबिंब चुनाव होता है। चुनाव का परिणाम और मानवीय चेतना का सीधा संबंध है। इसलिए जब मैं अपनी किताबों को लिखा तो जैसे डॉक्टर हेडगेवार की मैंने जीवनी लिखी तो उसका उद्देश्य यह था कि जिस विचार को लेकर चल रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार, उसका उदात्त यानी उसका जो सर्वोत्तम स्वरूप है, जो विभाजनकारी ना हो, जो मनुष्य को कुछ रचनात्मक उत्तेजना पैदा करे, वह करे। जैसे इज हिंदू डाइंग रेस मैंने किताब लिखी, वो मेरी किताब नहीं, वो एडिटेड बुक है। वो 3 किताबें ऐसी थी कि एक कर्नल UN मुखर्जी थे जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के दामाद थे। उन्होंने बंगाली जो अंग्रेजी पत्रिका अखबार था उसमें 21 आर्टिकल्स लिखा, उसका कलेक्शन इज डाइंग रेस करके छपा था। दूसरा एक लाला लालचंद थे पंजाब में, वो पंजाबी अखबार में लेटर टू द एडिटर लिखते थे और अनाम होकर लिखते थे। और एक लेटर टू द एडिटर, संपादक के नाम लिखा हुआ पत्र, एक 15 दिनों तक वहाँ पंजाब में डिबेट पैदा करता था। तो उन्होंने सेल्फ एब्नेगेशन इन पॉलिटिक्स, उनकी मृत्यु के बाद उनको ढूंढा गया किसने लिखा, सेल्फ एब्नेगेशन इन पॉलिटिक्स। एक स्वामी श्रद्धानंद की किताब थी। तीनों को मैंने एडिट किया। उसमें जो मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि समाज में जो विभिन्न डाइवर्सिटीज है, जो अलग अलग जातियां, संप्रदाय, धर्म के लोग रहते हैं, उनके बीच में किस प्रकार से निम्न बातों को हटाकर हम एकता स्थापित कर सकते हैं। तो मेरे सभी लेखनी, जैसे तीसरी किताब मेरा स्वराज इन आइडिया, तो डॉक्टर केसी भट्टाचार्य थे,
उन्होंने 1931 में एक बंगाल में आशुतोष मेमोरियल लेक्चर दिया था, वो टाइटल मैंने उन्हीं से बोरो किया, जिसका था कि स्वराज इन आइडिया। तो उन्होंने कहा कि जो विचारों पर और संस्कृति पर जो हमला होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, उससे नहीं होता है। पहले हम उसका विरोध करते हैं, फिर हम उदासीन हो जाते हैं, फिर उसको अपना लेते हैं, फिर हम उसके प्रशंसक हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा राजनीतिक आधिपत्य से मुक्ति करना, लिबरेट करना आसान होता है, लेकिन सांस्कृतिक आधिपत्य से मुक्त होना बहुत कठिन होता है। तो उसका ही एक अर्थ, इन सभी पुस्तकों का मेरा एक लक्ष्य यह था कि देश का जो सेकुलर डेमोक्रेसी है वो मजबूत हो, और जो आने वाली पीढ़ी उस पुस्तक को पढ़कर संकीर्णता में ना डूबने की जगह उसके मन में विचारों के प्रति अपना भाव जगे, एक क्रिटिकल भाव जगे। और मैं हर समय लिखते समय वो उस दो शब्दों को ध्यान रखता हूँ जो उपनिषद का शब्द है, नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। इसलिए खंडन की प्रवृत्ति नई पीढ़ी में आए, जो मैं लिखा उसका खंडन करे, जो उन्होंने कहा उसका कोई दूसरा खंडन करे। इसलिए अंत में मैं कहूँगा कि मैं सोक्रेटिस के उस सिद्धांत से बहुत प्रभावित हूँ जिसमें कहा प्रोफेस ऑफ इग्नोरेंस, कि मेरा जो ज्ञान है वो सीमित है, मानवीय है, मानवीय ज्ञान से अधिक मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब ऑथर प्रोफेस ऑफ इग्नोरेंस से चलता है तो वह समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाता है। Balasubramaniam ji, you have given your valuable insights through your books, Kautilyanomics, and very recently launched Dharmanomics, which talks about our indigenous and sustainable economic growth. First of all, I would like you to tell us more about your books in detail. Thank you. Thanks for inviting me here, both for Sunset TV and the organizers. It's great to be part of this event. A lot of my research is linked to what I would call economic history. We talk a lot about historical texts, but what I try to look at is the economic angle of the historical text. So my first book among the trilogy of books that I'm working on is Kautilya's Arthashastra. So I spent about 4 to 5 years trying to understand the Arthashastra. We talk a lot about the political part of the Arthashastra, the Chanakya Niti, but my premise is that there's a reason why it's called the Arthashastra. And that's why I devised a concept called Dharmic capitalism based on the idea of Dharma. And my first book deals with a lot of the ideas based on what Kautilya had said in this Dharmic capitalism model. And then I contextualize it to today's times in terms of trade, in terms of labor contracts, in terms of inequality, and a lot of these current economic concepts, how it relates. As an extension of this, in Dharmanomics, I focus on the common era kingdoms, the Cholas, Pallavas, Pandyas, Vijayanagar Empire. And then there is a huge extension in rest of Southeast Asia, which is Kamboja, which is Cambodia, Vietnam, and all these places. I noticed that a lot of them have these dharma-based economic frameworks. And an extension from Kautilya's time, you see that for thousands of years, there are various iterations of these dharmic economic frameworks which were there, including the temple-based economies, which we see in a lot of our villages today. You see them mainstream in a lot of these Southeast Asian countries, which I define as what I call the dharmic ecosystem. And then, of course, the role of the corporate guilds, the Srini Dharmas, and their presence in a lot of these kingdoms. The idea is to establish a series, a qualitative time series, for almost 2,500 years, where these dharma-based economic frameworks were the basis for the prosperity that Bharat had. And as an extension, the rest of civilizations which were inspired from Bharat over all this period of time. It's not like out of thin air, the Brihadishwara temple was built in Tanjavur. There was a systemic thinking behind it, systemic philosophy behind it, and an economic outlook behind it based on the idea of Dharma. And through these books, I try to make a rigorous research case because these things need to be studied for a long period of time and then explored through research. And I try to emphasize them through my books. So this is broadly my sort of research areas. Priti ji and आप सभी को मेरा नमस्कार. Thank you Sunset TV for having me.
आपकी अनुमति से मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलना चाहूँगा, क्योंकि उड़िया में फिर प्रॉब्लम। मुझे खुशी हो रही है जब मेरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, इट वाज सेड दैट आई विल ब्रिंग द रियलिटीज ऑफ ग्रासरूट पॉलिटिक्स. आई वुड लाइक that introduction to be my hallmark, because I spent a lot of years abroad, and जब मैं 2011 को इंडिया वापस आया और 2012 को जब पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया, I was part of बीजू जनता दल. Now I am part of BJP. Only last month I joined BJP after resigning from Rajya Sabha. So जब मैं पॉलिटिक्स को अपना करियर चुना, तो I decided that I'll spend at least half of my time in the grassroots. And even today, despite my professional requirement to stay in Delhi or in Cuttack, where the Odisha High Court is located, I'm a lawyer by profession as well. I make it a point to spend at least 15 days in the grassroots. Or there are about 8,000 odd panchayats, gram panchayats in Odisha. और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि I have slept overnight in at least 3,000 panchayats over the last 10 years. And if you really, आपको अगर डेमोक्रेसी को समझना है and the power of literature to empower democracy, then go to the villages. Particularly एक हफ्ता आप spend कीजिए इलेक्शन के समय में, and you will understand the power of literature, the power of our art, our culture, our folk tales in empowering democracy. The beauty and the force with which our heritage, our culture is harnessed by political parties of all shades, by candidates. I mean, it's a beauty to behold. So we come from that rich tradition, and democracy is not a static concept. It's a way of life. It's not just a political concept. Okay, we are a democratic nation. What does it mean? It's a living organism, and as any living organism needs food to nourish, to nurture itself, democracy as a thought or as a living organism also needs food for thought, and that food for thought is literature. Since time immemorial, we come from a civilization which is maybe 10,000 plus years old, and go back to our ancient roots. Look at our ancient texts, Mahabharata, or since you asked me, Preeti ji, that how literature has helped me in my democratic journey. I started because my education was in engineering and then law, and we engineers and lawyers, both the professions don't make you creative. It's very straightforward. So I decided that no, in order to be a good politician, I need to read. I need to develop the creative side of my personality. And I started by reading our ancient text. Before that, I had never read any of our ancient texts. And as I read Mahabharata, as I read Ramayana, and as I read Gita, and even contemporary, slightly more contemporary texts like Kautilya's Arthashastra or thereafter, I realized that, democracy is something inherent to the Sanatana Dharma and to the Indic civilization. And the essence of all our texts since time immemorial is timeless values such as dharma, such as nyaya, such as satya, which are all now incorporated either in our preamble or in different aspects of our different portions of our constitution. Okay, and if we say that the holy book of our nation is the constitution, which is the bedrock of our democracy, then these are the values, these are the principles which were enshrined in our ancient texts since time immemorial. And hence, by reading these texts, I have become a better politician, and I have been able to contribute my bit to the strengthening and empowering our democracy. Mm-hmm. Right? If we come to the freedom movement, the power of pen was as mightier as the power of sword or the power of ahimsa or non-violence. Rakesh ji has already mentioned a few names, Rashtrakavi, Ramdhari ji, and you have Aurobindo's the Asiatic concept, you have Swami Vivekananda's writing, you have Gurudev's writing, you have including Father of the Nations. All of this text, all of this literature helped us build a society, or helped us come out of the colonial hangover, have come out of the colonial, the shackles, and build a society which our founding fathers wanted to build. Then I'll come to the Constituent Assembly debates.
Okay, though they are not literature, though it's not literature, the debates, but I consider it as a treasure trove of values, of wisdom, of principles, which were again borrowed from our ancient text, borrowed from our civilizational heritage, and incorporated into a modern document that we know as the Samvidhan. So literature has always been the most powerful force, most powerful tool of empowering democracy. बिल्कुल। और जो आपने संविधान और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की है, हम जानते हैं कि 75 साल हम पूरे कर रहे हैं संविधान को अडॉप्ट करने के। इस पर भी मैं आगे चर्चा ज़रूर करना चाहूँगी, इस पर भी बात करना चाहूँगी कि कैसे वो साहित्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन वंदना जी, आपका मैं जो पहला एक तरह से रिएक्शन चाहूँगी, और मैं चाहूँगी आप थोड़ा डिटेल में अपनी किताब के बारे में बताएं। 32 साल का लंबा अनुभव आपका एक सिविल सर्वेंट के तौर पर, बहुत डाइवर्स एरियाज़ में आपने काम किया और बहुत कुछ आपने लिखा, लेकिन किताब के रूप में जो फ्रूगल इनोवेशंस की बात है और जो आपके इंसाइट्स हैं उस किताब के ज़रिए, मैं चाहूँगी उसके बारे में आप थोड़ा बताएं हमें, उसका सार क्या है इस किताब का। पहले तो धन्यवाद प्रीति जी, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और इन सभी एस्टीम पैनलिस्ट के साथ यहाँ थॉट्स शेयर करके, साझा करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्केलिंग ऑफ फ्रूगल इनोवेशंस, इनसाइट्स फ्रॉम इंडिया, ये किताब मैंने लिखी और बचपन से सुनते आए थे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो थॉट ये यहाँ से शुरू हुआ, और हमारा देश जहाँ के बहुत से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वहाँ पर लो कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए मान लीजिए फ्रिज नहीं है, तो हमारा कोई इनोवेटर मिट्टी कूल बनाता है, कोई ट्रैक्टर को रोड रोलर बनाता है। बहुत सारे जुगाड़ सॉल्यूशंस हमारे समाज में समय दर समय आते रहे हैं। जुगाड़ में थोड़े से नेगेटिव कॉनोटेशंस भी हैं, लेकिन जुगाड़ से बढ़कर हम देखें तो बहुत से लो कॉस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशंस को बनाना हमारा एक संस्कार सा रहा है। हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, पर जो मेरी चर्चा है वो है स्केलिंग एस्पेक्ट पर, कि ये जो सॉल्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम स्केल कैसे कर सकते हैं। और ये मैंने किया है 8 केस स्टडीज़ के माध्यम से, जिसमें 4 हेल्थ केयर सेक्टर में हैं, 2 कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं और 2 कोऑपरेटिव सेक्टर में हैं। तो जो 4 हेल्थ केयर सेक्टर में हैं उसमें मुख्य हैं अरविंद आई केयर सिस्टम, जो मदुरई बेस्ड एक सेटअप है, जो कि आज विश्व का लार्जेस्ट आई केयर सिस्टम है, जिसने शुरुआत की 10 बेडेड हॉस्पिटल से, और आज वार्षिक तौर पर वो 4.5 लाख कैटरैक्ट सर्जरीज़ करते हैं और 78 लाख सर्जरीज़ वो कर चुके हैं। ये शुरुआत हुई इनकी मिड 70s में डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी द्वारा। सिमिलरली दूसरा जो मेरा उदाहरण है वो है नारायण हृदयालय का, नारायण हेल्थ केयर भी जिसको कहते हैं हम। वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट पर कार्डियक सर्जरीज करते हैं। वो कैसे कर पाते हैं? फिर बाकी एग्जाम्पल्स मैंने ली हैं, अमूल की ली है, जो कि एक छोटा सा कोऑपरेटिव कैसे एक मिल्क डिफिशिएंट नेशन को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क कैसे बनाया उसने। सुलभ टॉयलेट्स का एक और एग्जाम्पल है, जिसने सैनिटेशन को किस तरीके से देश में बढ़ावा दिया। स्वच्छता अभियान पिछले 10 साल से ये मुहिम चल रही है, देश में एक रेवोल्यूशन है, पर इन्होंने ये काम 1970 से शुरू कर दिया था। पे एंड यूज टॉयलेट्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया सैनिटेशन को बढ़ावा देने के लिए, या मैनुअल स्कैवेंजिंग किस तरीके से ख़त्म करने की मुहिम चलाई गई, रिहैबिलिटेशन का काम किया गया। और बाकी और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नैनो का एक एग्जाम्पल है और टाटा स्वच्छ का एक एग्जाम्पल है इस किताब में। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स इस तरीके के हैं जो हमारे सिंपल लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, लाखों लोगों पर इनका असर पड़ता है। तो इसी सब की चर्चा इस किताब में है। बिल्कुल।
प्रोफेसर सिन्हा, जैसे आपने बताया कि तमाम महान विचारक, देश, स्वराज, विचारधारा, राजनीति, बहुत सारे पहलुओं की बारीकियां आपने अपने किताब के सामने हमारे सामने लेकर आए हैं आप। क्योंकि हर बार ये बात होती है कि इतिहास खुद को दोहराता है, ये भी कहा जाता है, और एक नया इतिहास लिखा भी जाता है। तो क्यों आपको लगता है कि आज के दौर में आपकी किताबें प्रासंगिक हैं? क्या है कि इतिहास में अनेक ऐसे पात्र होते हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको इतिहास अपने पिटारों में छिपा कर रखता है, और जब संकट का समय आता है वो पिटारे से वे इतिहास के पात्र और घटनाएं निकलती हैं। मैं राज्यसभा में आने के बाद एक पुस्तक को एडिट किया, उसका ट्रांसलेशन कर उसको एडिटेड फॉर्म में लाया। बाला साहब सालुंके, आपको आश्चर्य होगा मेरा संबंध जिस राजनीतिक पार्टी से है उससे उनका कोई संबंध नहीं था। वो रिपब्लिकन पार्टी के एमपी थे। उन्होंने अपनी बायोग्राफी, मैन्युस्क्रिप्ट था लेकिन छपा नहीं था, मराठी में लिखा हुआ था। तो मैं राज्यसभा में जाने के बाद मैं उनके घर परिवार के लोगों से मिलने पुणे गया। उनके पुत्र से मिला, कश्यप सालुंके से, और मैं तैयार किया कि मैं उसका ट्रांसलेशन हिंदी अंग्रेजी में करूँगा और एक उसका फॉरवर्ड लिखूँगा। मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा संबंध भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रहा, और रिपब्लिकन पार्टी के 1962 में एमपी थे, और उसके पहले भोर स्टेट होता था महाराष्ट्र, उसके एक मंत्री हुआ करते थे, और रिपब्लिकन पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के ट्रेजरर थे। तो स्वाभाविक है राजनीतिज्ञों की जो छवि होती है उस छवि के अनुसार वो बड़े सभी अच्छे स्थानों पे थे जिसमें उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बाला साहब सालुंके के घर में चूल्हा बंद हो गया। उनकी पत्नी को उनकी बहन ने, स्वर्गीय बाला साहब सालुंके की बहन ने आकर कहा, जो पुणे के शहर में म्यूनिसिपैलिटी की एक 4th ग्रेड की कर्मचारी थी, यहाँ सड़कों पे झाड़ू लगाती थी, कि तुम्हारे घर की स्थिति देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं नौकरी छोड़ती हूँ, और तब 4th ग्रेड के कर्मचारी जिसको रिकमेंड करते थे नौकरी हो जाती थी, तुम उस नौकरी में चले जाओ। और बाला साहब सालुंके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनकी पत्नी ने 15 साल तक पुणे की सड़क पे झाड़ू लगाया। यह उदाहरण मुझे इतना आकृष्ट किया कि कोई राजनीतिज्ञ इतनी ईमानदारी से देश की सेवा करता है, उसकी पार्टी कुछ भी हो, विचारधारा कुछ हो। इसलिए मैंने उस पुस्तक को लाया कि शायद उसको पढ़कर हमारी अंतरात्मा जगे, नई पीढ़ी जो राजनीति में आना चाहती है उसकी अंतरात्मा जगे, कि इस तरह के त्याग के द्वारा भी समाज की बुनियाद को मजबूत किया जा सकता है। तो पुस्तकों में ये बातें रहती हैं। आपने संविधान सभा का जिक्र अभी सुजीत जी ने किया था। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ना जो बड़ा होता है ना छोटा होता है। ज्ञान ज्ञान होता है, न ग्रेटर न लेसर। तो जैसे मैं मेघालय में गांव गोद लिया कोंगथोंग, और जब मैं उस गांव के बारे में राज्यसभा में उठाया तो पहले मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा मजाक न उड़ जाए कि एक गांव के बारे में, छोटे से गांव के बारे में उठा रहा हूँ, चूँकि मैं पहली बार संसदीय जीवन में आया था। उस गाँव में लोग एक दूसरे को जो बुलाते हैं वो शब्दों से नहीं, आवाज़। हर माँ अपने बच्चे को जन्म से पहले एक ट्यून देती है। जैसे मैं एक ट्यून बोलता कुकू, अब माँ ने इस बच्चे को ट्यून दिया, अब ये बच्चे का नाम की जगह वही ट्यून काम करता है। और इसके पैरेलल एक गांव कॉस्कोव है जो टर्की में है। संयोग से दोनों की आबादी, दोनों का नाम के से शुरू होता है, दोनों की आबादी 700 है। तो वो तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है, लेकिन हमारा गांव मेघालय में ही लोग इसको नहीं जानते थे। तो राकेश जी, वो हर बच्चा पहचान लेता था इस आवाज़ को अपनी माँ को? हर बच्चे की माँ जन्म से पहले ही आवाज़ तय कर लेती थी, और उस आवाज़ हर, जैसे आपका नाम प्रीति जी हम बुलाएंगे तो हर कोई जानता है कि मैं आपको बुला रहा हूँ, आपको। उसी तरह से आवाज़ भी नाम की तरह है। और वो डेड हो रहा था, उसको हमने रिवाइव किया। लगभग अपने संसदीय जीवन में 37 टाइम्स में उस गाँव गया, 33 बार गया उस गाँव में। और अब वो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज हो गया। बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। हमारा होम स्टैंडिंग कमेटी का भी वहाँ गई थी। लेकिन जो मैं मूल बात कहना चाहता हूँ कि जब मैं कोंगथोंग गया तो मैं यह लेकर नहीं गया कि आई हैव ए ग्रेटर नॉलेज। जो ब्रिटिश था ना, सिविलाइजिंग मिशन, तो हमें हमेशा फीलिंग होती है कि हमारे पास बड़ा ज्ञान है, दूसरे के पास छोटा ज्ञान है।
जब मैं वहाँ गया, जैसे वहाँ स्वागत को या हैंडशेक करते हैं या वेलकम करते हैं, उसको खुबलई शुभम कहते हैं। जब मुझे मेघालय से फ़ोन आता है वहाँ से, तो मैं खुबलई शुभम ही बोलता हूँ। तो हमारा नमस्ते ज़्यादा बड़ा है, उनका खुबलई शुभम छोटा है। तो मुझे लगता है कि साहित्य का काम एक उन्मुक्तता पैदा करना है। ज्ञान तभी बढ़ता है जब उन्मुक्त वातावरण में होता है। ज्ञान यदि चौहद्दी में, चौकीदारी में होता है, तो वह ज्ञान अब स्टालिन के शासन में या माओ के शासन में जो ज्ञान आया, जो लिटरेचर लिखा गया, उसका कोई महत्व नहीं है। ज्ञान तब आता है जब गांधी ने हिंद स्वराज लिखा। अब गांधी ने जहाज पे 9 दिनों में हिंद स्वराज लिखा, और हिंद स्वराज आज 200 साल बाद भी ईस्ट वेस्ट के बीच में एक डायलॉग का एक हिस्सा बन गया। ठीक उसी तरह से मैं कहा कि एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि लिटरेचर का क्या महत्व होता है। मुल्क राज आनंद ने 1935 में हरिजन नाम की किताब लिखी, और उस हरिजन किताब ने पूरा अनटचेबिलिटी के खिलाफ लोगों के कॉन्शसनेस को इवोक किया। ठीक उसी प्रकार हरि नारायण आप्टे ने 1924 में आज करके द वेरी डे, उसका अंग्रेजी में मीनिंग है, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक ने कांग्रेस का जो की स्थापना के लेकर किस तरह से कांग्रेस लोगों में इंपीरियलिज्म के खिलाफ कॉन्शसनेस जगा रही थी, उसको लोगों में जगाने का काम किया। तो मुझे लगता है कि लिटरेचर का पहला दायित्व होता है कि लोगों के मानसिक स्तर को उठाते हुए उनमें सोचने, समझने और स्वयं पर निर्भर रहने की क्षमता विकसित करना। एक बात प्रीति जी मैं जोड़ना चाहता हूँ, नॉलेज मेडिटेड थ्रू टेक्नोलॉजी इज वेरी डेंजरस फॉर द न्यू जनरेशन। आज गंभीर बात पढ़ना, गंभीर बात सुनना और गंभीर बात बोलना बहुत कठिन स्थिति हो गई है। छोटा में बोलना, छोटी बातें करना, हल्की बातें करना। तो अभी लिटरेचर के सामने, आज जो महोत्सव हो रहा है, इस लिटरेचर के सामने ज़्यादा चुनौती है कि आज दिनकर पैदा लें और आज ऐसे ऑथर्स पैदा लें जो नई पीढ़ी को उसोर ले जाए। जैसे दिनकर की एक घटना बता के अपनी बात समाप्त करता हूँ। दिनकर एक क्लर्क थे। दिनकर राष्ट्रकवि आप जानते हैं ना। दिनकर एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस से क्लर्क का काम करते थे। वो जब कविता लिखना शुरू किए, हुंकार उन्होंने लिखा ब्रिटिश, तो हर बार उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से एक नोटिस आता था। 2 साल में 41 से 43 के बीच में 1941 से 43 के बीच में 22 टाइम्स का ट्रांसफ़र हुआ। उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। तो एक जिद्द होती है, ज्ञान के प्रति एक जिद्द होता है। सोक्रात का ज्ञान था, और उसका सबसे बड़ा जूरी, वो क्या कहता था, जो सबसे बड़ा जूरी 700 लोगों का जूरी ने उसका फैसला किया, लगभग 750 लोगों में। उसमें 450 लोगों ने उसकी मौत की सज़ा दी, 150 लोग उसके साथ खड़े रहे। उसको क्या कहा गया, तुम बोलना छोड़ दो। कहा मैं बोलना नहीं छोड़ सकता। तुम अपना एकेडमी बंद कर दो, मैं छोड़। तुम एथेंस छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो दुनिया में जैसे कौटिल्य की बात कही, उन्होंने नंद वंश को चुनौती दी। तो दुनिया में जहाँ भी ज्ञान मौलिकता है वही ज्ञान है। तो मैं नई पीढ़ी के जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ज्ञान का पहला अर्थ होता है जो आप सोचते, समझते और चीज़ों को देखते हैं, उसको गहन रूप से सोचकर, चूँकि आपका ब्रेन ही प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में बाहर से आने वाली चीज़ों को सोचें, समझें, फिर अपने रूप में व्यक्त करें। तो अंत में देखिए, गांधी के पास हरिजन और यंग इंडिया, तिलक के पास मराठा और केसरी, मालवीय के पास अभ्युदय और लीडर, बाबा साहब अम्बेडकर के पास बहिष्कृत भारत। सभी नेताओं के पास अखबार थे। क्या ये नेता आपस में प्रतिद्वंदिता करते थे? क्या नहीं। सबों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति को अपने अपने अखबारों के द्वारा व्यक्त किया। तो ज्ञान जितना विकेंद्रीकृत होगा, ज्ञान जितने ही भी स्रोतों से आएगा, उतना ही उस देश की, उस सभ्यता की रौनक बढ़ेगी। तो भारत का वैशिष्ट्य यही है कि ज्ञान विकेंद्रीकृत रहा है। तमिलनाडु में तमिल लिटरेचर लिखा गया, तेलुगु लिटरेचर लिखा गया, नर्मद ने उड़िया लिटरेचर गुजरात में लिखा, उसी तरह से दिनकर ने लिखा। तो इस तरह से ज्ञान विभिन्न स्रोतों से आती है, तो वो ज्ञान इस देश में एक चेतना का भंडार पैदा करती है। इसीलिए भारत के बारे में कहा जाता है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती है, क्योंकि हमने ज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया है। बिल्कुल। और जो एक बड़ी चुनौती की, बड़े चैलेंज की आपने बात की है, वो है आज के डिजिटल एज में साहित्य को कैसे बचाया जाए, संवारा जाए, निखारा जाए और सहेजा जाए। तो इस चुनौती पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन एक जो जिद की भी आप बात कर रहे थे, एक जिद बाला सुब्रमण्यम जी की भी थी। उन्होंने 5 साल दिए
कौटिल्यनॉमिक्स को लिखने के लिए। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, 5 years इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर राइटिंग अ बुक, बाला सुब्रमण्यम जी. Why it took you 5 years to write Kautilyanomics? What was the main reason behind? Was it just because of the extensive research that you did, or some other aspects also? Yeah, thank you. So you're right. I mean, you could write 3 op-eds in 5 days and finish off the entire book if one wanted to. But credibility comes only when you invest time on these subjects. For example, the Arthashastra, for all the talk and for all the discussions around the Arthashastra, a lot of it was on the Chanakya Niti, the political side of it. What I was trying to do is extract a framework out of the thinking. So which meant, first of all, to engaging with the text itself, which is in very dense Sanskritam. It's in very poetic Sanskritam. So one had to spend time, not only one understand Sanskritam ourselves, one had to sort of engage with the scholars who know Sanskritam, and then extract the real nuance of the text. So that was a huge challenge. And secondly, you have to bring, because most of the scholars and translators, they're all linguistic experts, right? They know the language, but beyond that, they don't know the nuances of things like economics and policy. So one had to sort of bring that flavor to the text. And also when you establish a sort of a framework, you have to bring themes across the text. For example, Matsya Nyaya, right? Avoiding Matsya Nyaya is one of the important themes of the Arthashastra. And when you look at the quotations, Kautilya will talk about the role of implementing the rule of law, ensuring that the rules are implemented perfectly, so that Matsya Nyaya is avoided, so that the big fish does not eat the smaller fish. But on the other hand, this can be viewed through the prism of what I call inequality as well. Like when big enterprises and big companies sort of don't allow smaller firms to function. So Kautilya also talks about that in a subtext. So it's the same theme of avoiding Matsya Nyaya, but can be applied across board in various layers. So when you're trying to establish a framework, you have to look at various themes that the Arthashastra provides, and then pull together the various ideas in one notion. So I think it takes a lot of time, one, because of the translations, and there have been only like 4 to 5 major translations of the Arthashastra. And most of them, for example, the first translation was by Shyama Sastry in early 1900s, and then Khane had about 3 versions in 1950s, and Rangarajan in 1990s. So there are very limited translations, and most of them are some time before. So one had to be very careful on understanding the text and bringing about this framework. And the last part of it is to contextualize it to today's times. So for young people to read, you really wanted to know the relevance of what it is today. So one had to sort of blend all these things together as well. So I think it takes a lot of time, because if you're trying to really establish something credible, something unique, something different, it needs to be rigorous. If it's not rigorous, it doesn't really, appeal to the audiences that we want to, which is the common public. So I think it takes a lot of time because of these factors, and I think it's important that we spend time, especially in literature and research, so that it stands the test of years as well. So I think that's one of the reasons why it took me quite a bit of time to do it. थैंक यू. सुजीत जी, आपका जो नज़रिया है वो एक लेखक से ज़्यादा एक पाठक के तौर पर हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखता है, और जिस तरह से भी आपने चीज़ों का अनुभव किया है, आपने किताबों को, साहित्य को पढ़ा बहुत है, आप बाहर रहकर भी पढ़ाई की. मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, दुनिया के बाकी देशों में जब आप गए हैं, वहाँ आपने किस तरह से साहित्य को देखा, समझा है, उसके असर को लोकतंत्र में देखा और समझा है? जब मैं फ्रैंकली जब मैं विदेश में था, तब ज़्यादा मैं लिटरेचर नहीं पढ़ा था, या पॉलिटिकल लिटरेचर, पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपोजर नहीं था. बट जब मैं पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया, तब मैंने काफ़ी पढ़ाई की, और आई रेड लॉट ऑफ फॉरेन लिटरेचर एज वेल. आई स्टार्टेड विद लेटर्स फ्रॉम बर्मिंघम, कई लोग यहाँ पे जानते होंगे, which were written by Martin Luther King Jr. in 1963. And
That was the basis of civil disobedience movement in the US. Right? So we know that the very fountain of the French Revolution started with the ideas of fraternity, liberty, and equality. Again, these were very powerful thoughts which were disseminated through literature in Europe. Some of you might know that the birth of the American freedom movement was due to revolutionary pamphlets called Common Sense by Thomas Paine in 1776. Again, there were a lot of grievances in the society of that era. People were very unhappy with the colonial rule, but it needed these pamphlets. It needed a catalyst, which Thomas Paine provided through these writings called Common Sense in 1776, which led to the independence of the US. In recent times, some of you might have read about George Orwell, 1984, or Animal Farm. Again, how authoritarian societies behave, how freedom of thought is important in society. These are all essence, these are all bedrock of democracy. So reading this literature, आपने सही कहा प्रीति जी, मैं एक पाठक के तौर पे, क्योंकि I didn't have any family legacy in politics, I didn't have any background in politics, nor was I a student of political science. तो मेरे लिए पढ़ना बहुत जरूरी था. और I would not have done justice to my role as a politician if I had only concentrated on our Indic test. Right? Because as Rakesh ji was saying, knowledge can come from every side and every direction. So, but having said that, much of what we have said has been appropriated by the West. We don't read Kautilya's Arthashastra, but we have read Prince. Right? We don't read our text, but we know about Sun Tzu. So this is unfair. So it was in my case. I think I have been able to do a proper balance of being a partaker of Indian text and since we are at the Sansad TV conclave, it will not be out of place. And in fact, it's my duty to share something with the audience. And Sumant ji is here, Rajat ji is here. They have been doing something really wonderful to empower our democracy. The audience needs to know that Sansad TV is working on a technology application where any member of parliament can speak and also understand real time any conversation in the house, in the floor of the house, on the floor of the house in 10 Indian languages. We have 22 official languages, and Sumant ji, I think the goal is to eventually go for all 22 Indian languages. Today, if I were to speak in a language, in Odia, which is my mother tongue, in Rajya Sabha, then I have to give 24-hour advance notice. And there is no real-time translation or transcription. But what the Sansad TV and committed people like Suman ji, Rajit ji, Vandana ji, they are all doing is to truly democratize. Someone in Kalahandi, someone in Kokrajhar, someone in Baleswar or Koraput needs to understand what is being debated and discussed in the parliament. This is true democracy. This is empowerment of democracy, right? And same is happening with our judiciary today. I forget the trial courts or the lower courts, but in the constitutional court, every argument is in English. But thanks to the Supreme Court, thanks to a few high courts like the Kerala High Court, the Odisha High Court, who have taken the lead in saying that every judgment that comes out of these courts will be translated in every single language, official language of the country. So this is actually true democracy and democratic empowerment. वंदना जी, जब आपकी किताब की हम बात कर रहे हैं, बड़े मैं टेक अवे समझूंगी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और जाहिर तौर पर इन्हें सुनकर ही पता लग रहा है कि कितना बड़ा बदलाव एक सोसाइटी में ला सकती हैं और मैं कहूँ कि ज़मीनी स्तर पर हर आम नागरिक की मदद कर सकती हैं. मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी और बड़े टेक अवेज़ क्या हैं, और क्योंकि आपने पॉलिसीज़ को भी बहुत बारीकी से देखा समझा है, थोड़ा अगर आप समझाएं कि नीतियों का जो ज़मीनी स्तर है या ज़मीनी असर है, मैं कहूँगी, उन्हें आप कैसे देख रही हैं, और डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं और पॉलिसी की बात करते हैं, इनका ताना बाना एक दूसरे से कैसे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है? देखिए, पॉलिसी मेकिंग है क्या?
जो हमारी देश की प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमारे सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं, उनको एक पहले तो डिफ़ाइन करना, रिफ़ाइन करना, फिर उनको एक डायरेक्शन देना और फिर बना करके उनका क्रियान्वयन करना। तो हमारी इसमें नेशनल प्रायोरिटीज़ भी डिफ़ाइन होती हैं। हमारी कोर वैल्यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइंड है। तो वही हमारा बेडरॉक है जहाँ से हम सारी शक्ति लेते हैं और उसके आधार पर हम सारा काम करते हैं। तो चाहे वो नीतियाँ हमारी महिलाओं के लिए हों, बच्चों के लिए हों, युवा के लिए हों, स्वास्थ्य के लिए हों, आर्थिक नीतियाँ हैं, लिबरलाइजेशन है, वो चाहे हम विकसित भारत की तरफ बात करने की बात करें या हम क्लाइमेट एक्शन की बात करें, जैसे मैंने हाइड्रोजन मिशन के लिए भी काम किया है। तो एक दिशा को निर्धारित करना, पॉलिसी को डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और इसके साथ साथ ये सारा काम करते हुए सिटीज़न वॉइस को सुनना, फीडबैक लूप्स को ओपन रखना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके साथ में आपकी पॉलिसी जस्ट हो, इंक्लूसिव हो, न्याय संगत हो, निष्पक्ष हो। ये सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल ज़रूरी हैं एक पॉलिसी मेकर के लिए और अपने काम को बढ़ाने के लिए। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जहाँ नीतियाँ सही हैं, नीयत सही है, तो परिणाम तो सही होने ही है। तो नीति कार का तो काम यही है। जो मेरी किताब है तो उसके जो स्केलिंग का एस्पेक्ट है उसमें भी पॉलिसी एडवोकेसी का बहुत बड़ा रोल है। जितने भी ये सॉल्यूशंस की जिनकी मैंने बात की है, जब ये स्केल कर रहे थे तो इसमें ऑफ कोर्स आपको एक सॉल्यूशन चाहिए जिसकी एक वैल्यू प्रोपोजिशन हो, वो अफोर्डेबल होना चाहिए, उसको एक्सेसिबल होना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनल तो काम करने ही पड़ते हैं। एक ऊर्जावान लीडरशिप चाहिए आपको जो आपका कॉज बढ़ा सके और साथ साथ में पॉलिसी एडवोकेसी कर सके। जब आप अगर मैं अरविंद आई केयर की बात करूं तो ये किस तरीके से जुड़े सारे नेशनल इकोसिस्टम से, लगभग 50% इनकी सर्जरीज जो है वो फ्री ऑफ चार्ज हैं। सिमिलर इज़ द केस विद नारायण हेल्थ, बहुत बड़ा इनका फ्रैक्शन है जो कि फ्री ऑफ चार्ज होती हैं। सिमिलर आपका जयपुर फूड का मॉडल है, वो भी निःशुल्क अपनी सेवाएं देते हैं। तो इन्होंने किस तरीके से अपना नीतियों के साथ जोड़ लिया या अमूल किस तरीके से स्केल किया, तो इनको सरदार पटेल जी की बहुत सपोर्ट थी, मुहैया थी, और फिर उसके बाद से और बहुत सारे हमारे नेता थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इन सभी सॉल्यूशंस में कहीं ना कहीं वो बात निहित मुझे दिखाई देती है। तो नीतियों का तो देश के विकास में और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर सिन्हा, हम जानते हैं, जैसा आपने भी कहा, कि इतिहास गवाह है कि साहित्य ने क्रांति भी की है, विजय भी पाई है, और कहीं ना कहीं साहित्य ही जो कलम के सिपाही उनकी सबसे बड़ी तलवार है, वही सबसे बड़ा हथियार है पूरी दुनिया में। अगर हम लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, और आज के टॉपिक पर मैं चाहूँगी बहुत संक्षेप में अगर आप इसका जवाब भी दें, कैसे आपने साहित्य के असर को एक तरह से लोकतंत्र को बनते बिगड़ते नया आयाम देते देखा है साहित्य के जरिए? देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ। संविधान सभा की बहस की बात बार बार होती है, वो एक मिरर है हमारे लोकतंत्र का। संविधान सभा में एक प्रस्ताव आया, एच.वी. कामत थे, सोशलिस्ट लीडर थे, कि ईश्वर का जिक्र प्रस्तावना में होना चाहिए। अब ये प्रस्ताव आया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनुरोध किया कि आप इसे वापस ले लीजिए। पूर्णिमा बनर्जी एक सदस्य थी, उन्होंने कहा कि काइंडली डोंट फोर्स अस टू डिस्कस गॉड और वोट ऑन गॉड। लेकिन वो नहीं माने। संविधान सभा ने ईश्वर पर बहस की और खुलकर बहस की। अंत में वोटिंग हुई, 68 वोट्स उसके अगेंस्ट पड़ा, 41 वोट्स उसके पक्ष में पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है, जब मानसिक रूप से मुक्त होकर
हम अपनी बात कहने की क्षमता रखते हैं तो लोकतंत्र समृद्ध होता है, और वही लिटरेचर में व्यक्त होता है। जो मैंने कुछ अखबारों का नाम लिया, गांधी का हरिजन यंग इंडिया या केसरी मराठा तिलक का। अब तिलक ने केसरी में जो लिखा उसके कारण मांडले जेल गए। उनको इस बात की चिंता नहीं थी, उनको चिंता ये थी कि अपनी अभिव्यक्ति यानी मौलिकता की अभिव्यक्ति करना ही मूल लिटरेचर होता है, बुनियादी लिटरेचर होता है। तो लिटरेचर कैसे कर, जैसे गोरकी, उन्होंने मदर लिखा। अब गोरकी का साहित्य आज तक है, और गोरकी के जो मैंने सदन में कोट किया उसको करके समय कम है, मैं उसको समाप्त करता हूँ। गोरकी की एक महिला मित्र थी जो लगभग आधी उम्र की थी। उन्होंने गोरकी को एक पत्र लिखा कि तुम इतने लोकप्रिय हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी बेहाल रहती है, तुम लोगों से मिलो जुलो और इस लोकप्रियता का लाभ उठाओ। तो गोरकी ने उनको जवाब जो दिया, मैं अंडर कोट ऐसे ही यथावत कोट करता हूँ, मेरे प्रति कुछ लोगों का आकर्षण है, यह बात मुझे प्रसन्नता देती है, लेकिन यह बात मुझे इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि मैं अपने प्रति यथावत और कठोर बना रहूं। तो लिटरेचर में जिन लोगों ने, आज गोरकी का नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम है, सुब्रमण्यम भारती का नाम है, धर्मवीर भारती का नाम है। धर्मवीर भारती ने आपातकाल के दिनों में एक कविता लिखी कि 72 साल का बूढ़ा आदमी हाथ में एक लकड़ी लेकर निकल पड़ा है, लाठी लेकर निकल पड़ा है, अपने खिड़की दरवाज़ों को बंद कर लो, क्योंकि एक 72 साल का बूढ़ा आदमी निकल पड़ा है। अपने बच्चों को सड़कों पे मत भेजो। अब देखिए निर्भीकता, देखिए सत्य कहने की क्षमता। तो जैसे स्पाइन होता है तो हम बैठ पाते, यदि मेरा स्पाइन कमज़ोर हो जाए तो मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊँगा, मुझे लेटना पड़ेगा। तो एक स्पाइन ऑफ कॉन्शसनेस होता है, स्पाइन ऑफ नॉलेज होता है। तो लोग अपने स्पाइन ऑफ कॉन्शसनेस विकसित करते हैं या स्पाइन तोड़कर नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो वो नॉलेज नहीं है। द नेचर ऑफ नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान की प्रकृति क्या है, सोर्स ऑफ नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञान का सोर्स क्या है, बस। और नई पीढ़ी को मैं ही कहूँगा, यह भारत जो है वो नचिकेता और आरुणि का जिद है और अष्टवक्र का है। उसके चेहरे शरीर इतना अष्टवक्र का था, लेकिन उसने जनक के दरबार में सभी लोग को पराजित कर दिया। और नचिकेता बाल्य अवस्था में ज्ञान के भंडार यानी यमराज को चुनौती दी। तो ज्ञान की ना कोई चौहद्दी होती है, ना कोई आयु होती है। शंकराचार्य अल्प आयु में अद्वैत के भाष्यकार बन गए। तो मैं आप सबसे करूँगा कि साहित्य का मतलब होता है कि पढ़ना कम, सोचना ज़्यादा और अभिव्यक्ति करना। बस ये 3 बातें हम करें तो मुझे लगता है कि साहित्य समाज, संस्कृति और लोकतंत्र तीनों के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल। सुजीत जी, जल्दी से आपका भी कमेंट मैं चाहूँगी कि आज के दौर में साहित्य के सामने क्या चुनौतियाँ देखते हैं। जैसे हम जेन अल्फा की बात करते हैं बार बार, ऐसी लैंग्वेज है उनकी जो शायद हम में से बहुत सारी बातें हम समझ भी ना पाएँ कि वो क्या शब्द कहे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो आज का युवा है, जो अब जनरेशन है, इस दौर में साहित्य के सामने क्या चुनौतियां हैं, और एक पाठक एक लेखक दोनों के तौर पर इनकी जिम्मेदारी भी क्या है, युवाओं की जिम्मेदारी भी क्या है? देखिए, आपने डिजिटल एज का जिक्र किया प्रीति जी। लिटरेचर विल नेवर डाई, बट इट्स गेटिंग मॉर्फ्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। एंड आई हैव ए 16-year-old सन, और मैं जब उसको देखता हूँ, ही हैज़ लॉस्ट एवरी इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स। और वो आईटी की तैयारी कर रहा है, आईटी की तैयारी मोबाइल फ़ोन से कर रहा है। प्रोफेसर रंगनाथन यहाँ पे बैठे हैं, सो ही विल टेल यू। आई मीन, मैं खुद इंजीनियर हूँ। मैं जब तैयारी कर रहा था आईटी का, तो यू नो हम लोग मतलब पेजेस आफ्टर पेजेस करते थे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स को आप कैसे मोबाइल से पढ़ सकते हो? बट दिस इज, यू डोंट अंडरस्टैंड, योर टाइम्स हैव चेंज्ड, दिस इज न्यू वर्ल्ड। सो हाउ डू यू आर्ग्यू विद अ 16-year-old son? So this is happening with literature also. And if literature will fail us in the digital age, or for that matter any age, then democracy is in peril. Whether it was in the 19th century when Macaulay famously said, अगर भारत को colonize करना है तो you have to cage its knowledge system, you have to destroy its educational system, its thought process. Or whether it's the emergency, dark days of emergency, which Rakesh ji said, there has been research, there has been empirical research that from 1971 until June 1975, there was a systematic degradation of literature. There was appeasement literature.
there is a direct, it may not be a causal relation, but there is a direct correlation between, the dilution of good literature and the proclamation of emergency. So that is the power of literature in empowering democracy. So I hope that, digital age is the reality. लेकिन इसमें हम लोग how do we revive the urge to learn? How do we revive the urge to read amongst our youngsters? And it's particularly important because we are the most youthful nation on earth. आज आधी से ज़्यादा जनसंख्या हमारी below 25 है. 2/3 of our population is under 35. So this is a huge asset that we have, which is the future of our nation, future of our democracy. But if they don't read, if they don't have any interest in humanities and creative arts, then I think that's a sad thing. Balasubramaniam ji, what challenges do you see during this incredible digital age? I think the biggest challenge is to spend quality time in understanding all this. Because in an age of instant gratification, we often, go from one area to another. But if one needs to really specialize and understand, I think one needs to sit down and sort of focus into areas of research and interest. For example, this notion that democracy somehow came from the Americans itself, in my view, is flawed. Because if you look at the Uttarameru inscriptions in Kanchipuram in Tamil Nadu, I'm talking about 9th century CE, around 900 and early 9th century CE, you have a detailed prescription of how the ballot system, the electoral system, was done during the Chola's time, and it gives you details of how the ballots were done, how a group of people were chosen in Taluk, and also gives you descriptions of how the entire process happened in that particular area, and the Nadu and the Pattanams, which are basically the cities and the states. So and let me go even further. The Srinis, which I spoke about, which is the corporate guilds, most of them are governed by principles of democracy in terms of electing the leaders, electing the sort of CEOs of, say, corporations of those types. It was all done through a democratic process. So I think a lot more needs to be done in terms of researching and tracing the origins of such thought so that we have a sense of confidence about ourselves, a sense of identity, a firm identity of what our past is. And I think that will help to secure the future, because we're talking about a continuous civilization for thousands of years. And that gives us a lot of motivation to ensure that continues in the future. So one thing I think people need to do is to sort of engage, read more about the past, and also try to bring about these principles in the present and the future. Indeed. वंदना जी, आपका क्लोजिंग कमेंट एक तरह से मैं कहूँगी, चैलेंजेस के बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं आपके नज़रिए में कि आज क्या चैलेंजेस ही हैं या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है आज के डिजिटल एज में, और साथ ही एक महिला के तौर पर जब हम साहित्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि महिलाओं को वो दर्जा साहित्य की दुनिया में मिल पाया है क्या? क्या इसके लिए भी अवसर हैं हमारे सामने? अवसर तो बहुत हैं ही, पर साहित्य कोई समाज के बाकी अंगों से भिन्न नहीं है. अगर हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में लगभग 18% हैं, हमारी संसद में लगभग 16.5% हैं, हमारी सिविल सर्विसेज ने इस साल बहुत बेहतर किया है, महिलाएं 34% हैं. तो जब बाकी सब जगह पर 50% से कम है तो साहित्य भी उसी का प्रतिबिंब है एक. लेकिन उम्मीद बहुत है. इस साल नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी महिला को गया है. 15% वहाँ पर भी हैं, पर उम्मीद है कि ये बहुत नंबर बढ़ेगा. और चुनौती फ़िलहाल एक ये भी है कि महिलाओं को अक्सर कई गुना काम करना पड़ता है पुरुषों के बनिस्बत, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी क्षमता और प्रतिभा को सिद्ध करने के लिए अक्सर करना पड़ता है. तो अगर हम अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करते रहें, अपने वर्क एनवायरनमेंट में इंक्लूजन लेकर के आएँ, और महिलाएं भी ठान लें कि अपना काम करती रहेंगी, मेहनत करती रहेंगी और विश्वास रखेंगी, तो ये डेफिनेटली ये बढ़ता रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. अगर दर्शकों का कोई सवाल है तो अब मैं चाहूँगी कि दर्शक अपने सवाल सीधा पूछ सकते हैं. Hello ma'am, hello sir. Sir, basically I have query regarding कि we learn from past and we are the slavery of the past. Please tell me कि how literature emphasized democracy and the men's human rights. The role of literature
is not directly connected with the whom to vote or how to vote. Literature gives you some strength to think about the political situation and increases your conscious level of consciousness, index of consciousness. When your index of consciousness goes up, then you decide your own. You are the sovereign power as a political citizen. When you dilute your sovereignty, then you get reduced as a little citizen. So literature's role is to make you as a citizen who can decide his own. Different ideology, different political party, different ideas would come, but the right and the proper at the right time decision is yours. That is the role of literature. One more thing, literature also gives you the thought how to create equality in the society, social egalitarianism. Literature is not only for voting, literature is also for creating the egalitarian mindset. Gulamgiri, written by long ago in 1873, that book is very important. We can't read. We will react. When you will read the Gulamgiri, you will react that. So Jyotiba Phule wrote in 1873. So I think that wide reading, जो हिंदी में कहता है स्वाध्याय, स्वाध्याय और सत्संग, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. स्वाध्याय पढ़ना, सत्संग जो पढ़ी हुई बातों को आपस में विचार करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक कोई और सवाल हम शामिल कर पाएंगे फिर हम इस सत्र को Sir, so basically I am a literature student of Delhi University Hansraj College, and my question was, as budding authors, there we have seen like there is a quite decrement in the quality of the works that have been produced. Like, should we write works to sell or just to write quality literature? Because there has been a lack of quality literature, and like as we have seen, most of the authors they gain popularity posthumously. So what should we do? Like, we should write to sell or to write the quality content that we want to? From my personal experience, I think it should be something that you want to do, that you're passionate about, and I think the outcomes are will take care on its own. I mean, for example, for my book on Kautilya, which I mentioned, about 4 to 5 years that I spent, for almost 3 years there was no publisher. So I was almost thinking about publishing, because a lot of mainstream publishers wanted changes which I was not comfortable with. But I believed in the content, and I think it's important to believe in your work and what you want to do, and the results will probably take care of itself. So I would rather forget about selling. That's after you publish the book. Focus on what you want to do and write what you're passionate about. इस सत्र को हम यही विराम देते हैं. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में देखने के लिए. इस मंच पर अपने माननीय अतिथियों का सम्मान हम सेंगोल की एक प्रति भेंट कर करेंगे. ये सम्मान आपके योगदान और विचारशीलता के प्रति हमारी कृतज्ञता है. मैं अनुरोध करना चाहूँगी संसद टीवी के एडिशनल CEO और राज्यसभा सचिवालय की एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर वंदना कुमार जी से कृपया रिनाउंड ऑथर एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी को सेंगोल की एक प्रति इस अवसर पर प्रदान करें. In this moment of honoring our esteemed guest, I would like to invite Mr. Sumant Narayan, Joint Secretary, Finance and Admin, Rajya Sabha Secretariat, to kindly present the token of thanks to Mr. Sriram Balasubramaniam by offering him the Sengol replica as a gesture of gratitude. संसद टीवी के एंकर प्रतिबिंब शर्मा जी से अनुरोध, कृपया फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट सुजीत कुमार जी को सेंगोल के प्रति सम्मान स्वरूप भेंट करें. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें.